Hi everyone, I welcome you all on the channel of Olive Board. I am Payal, your ESI faculty, and this video is going to be very helpful for all of the aspirants here who are preparing for every examination, be it regulatory exam or any of the other exams. This video is going to be very helpful because in this particular video we are now going to analyze the schemes of the January month. ठीक है, so तीन parts में जो sessions हैं ये divided रहेंगे. So in the first part we'll see few news of January month. In the second part of the video we'll cover the rest of the news, the rest of the schemes, and in the third part that will be a revision part. Okay, so revision part में हम क्या करेंगे? We'll come up with the MCQs or questions that are related to the schemes that are there in January month. So वो एक revision purpose के लिए है बच्चे के लिए कि वो अगर न्यूज या फिर अगर एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करेगा साथ साथ में तो एक बच्चे को भी क्लैरिटी आएगी प्लस एक रिवीजन भी बन जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन बट बिफोर दैट यू कैन सी दिस इज अ स्कैनर ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल. हम न्यूज़ को लेके या फिर कुछ भी क्लास को लेके कुछ भी उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है तो हम इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करते हैं. सो ऑफ कोर्स यू कैन स्कैन इट एंड ज्वाइन इट. सो द फर्स्ट स्कीम वी हैव इज फसल पीएम फसल बीमा योजना. ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना. नाउ लेट्स डिकोड द वर्ड इटसेल्फ बिकॉज आई टेल यू एवरी टाइम कि जब भी आप कोई भी स्कीम रीड करते हैं या फिर कोई भी कुछ रिलेटेड वर्ड रीड करते हैं तो फर्स्टली डिकोड इट. ओके, तो यहाँ पे फसल इज व्हाट? फसल इज योर क्रॉप. ठीक है, बीमा इज व्हाट? बीमा इज योर इंश्योरेंस. So you get a clarity here that this is a yojana that is related to a crop insurance. Okay, so this is a particular scheme that takes care of the insurance of your crop. Now why this particular news or why this particular scheme in news now? Because the government has approved its extension of PM Fasal Bima Yojana and your restructured weather based crop insurance scheme until 2025-26. so you can see कि इसका क्या हुआ है? extension हुआ है. that is the reason it is in news and there are high chances कि अगर ये news में है या फिर अगर ये इसको consider करा गया है, it is discussed in the PIB also, so there are high chances कि इसके ऊपर question जो है वो पूछा जा सकता है. so now what is important for us कि PIB जो हमारा PM फसल बीमा योजना है या फिर अगर मैं बात करूँ हमारे restructured weather based crop insurance scheme की, उसके बारे में जानना what all it includes. this is very important to understand. so firstly talking about this पीएम फसल बीमा योजना क्या है कि एक क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, हमारी जो क्रॉप्स हैं दे आर ऑफ कोर्स पेरिशेबल इन नेचर, हम उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर जो है वो नहीं कर सकते हैं. सो एक इंश्योरेंस दिया जाता है कि अगर आपकी क्रॉप जो है वो खराब भी हो जाती है be it from any of the reasons, तो आपको क्या मिलेगा? certain जो amount है that will be there. assurance या फिर आप बोल सकते हो कि इंश्योरेंस करा जाता है. for example we have house insurance, we have health insurance. so similar is the case with the crop insurance. similar benefits are provided here. ठीक है, if I talk about RWBCIS that is restructured weather based crop insurance scheme, तो ये क्या करता है? एक risk coverage provide करता है. ठीक है, of course I told you that crops are perishable in nature. कभी भी weather conditions के कारण या storage conditions के कारण यूजुअली खराब हो जाती हैं. ठीक है, सो व्हाट डज इट प्रोवाइड? रिस्क कवरेज टू फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल कैलामिटीज. ओके, नाउ नेचुरल कैलामिटीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. हो सकता है कि किसी मौसम में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए उसके कारण क्रॉप हमारी खराब हो जाए. हो सकता है कि किसी मौसम में बारिश ही ना हो उसके कारण भी हमारा क्रॉप लॉस जो है वो हो सकता है. तो उस चीज से अश्योरेंस देने के लिए this particular scheme is there. ठीक है, it was launched in 2016 to safeguard the farmers income from weather shocks. Similarly it protects the farmers from financial losses due to the adverse weather conditions. now these are the aspects which we have already discussed. ठीक है, now the types of crops that are included in it. so food grains. ठीक है, similarly we have oil seeds and we have commercial horticulture crops. ठीक है, we have commercial crops and we have horticulture crops also that are included in this particular insurance scheme. so नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे किसको? क्रॉप को. ठीक है, नाउ बोथ ऑफ द स्कीम्स आर रिलेटेड टू दिस ओनली. also it is open to farmers that includes tenant farmers and your sharecroppers cultivating notified crops in a designated area. ठीक है, so this is the information that is related to it. next scheme we have is direct tax विवाद से विश्वास scheme. अब कोई भी अगर आपको टैक्स के रिलेटेड कुछ भी
अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दिस स्कीम इंश्योर, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न को लेके कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई लिटिगेशन को लेके प्रॉब्लम हो, तो दिस पर्टिकुलर स्कीम विल इंश्योर दैट योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड ऑन टाइम, व्हाटएवर इज रिलेटेड टू व्हाटएवर इज रिलेटेड टू टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से विवाद, ठीक है। नाउ डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिकोडिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्स, वी ऑल नो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या इंक्लूड होता है? हमारा जीएसटी वगैरह। विवाद क्या है? इज प्रॉब्लम, या फिर आप बोल सकते हो लड़ाई, ठीक है। विवाद से विश्वास, मतलब गवर्नमेंट इज गिविंग सपोर्ट टू एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट इज गिविंग सपोर्ट टू एन इंडिविजुअल कि अगर आपका कुछ भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी विवाद है, कोई भी प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटेड टू योर डायरेक्ट या फिर आई वुड से इनकम टैक्स, तो दिस स्कीम विल इंश्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। दिस इज द डिकोडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर, दिस is just to simplify the things. Now what does the scheme say? So it says that this specific scheme is for simplifying the resolution of pending income tax disputes, thereby reducing the litigation burden for both taxpayer and your tax authorities, ठीक है, for your tax authorities. So basically कोई भी related, इसके tax के related अगर आपको कोई भी problem है तो under it you can resolve it. Now it was introduced in October 1, 2024. Resolve the pending income tax appeals, writs and your petitions also, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर स्कीम है, व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज इट इज देयर इज अपडेट रिगार्डिंग इट, रिगार्डिंग द एक्सटेंडेड डिटेल्स, ठीक है। सो देयर इज अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. सो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ कैलकुलेटिंग योर पेबल अमाउंट टू January 31, 2025. नाउ अ टास्क फॉर ऑल ऑफ यू इज कि पहले आपको एनालाइज करो, आपने आई टोल्ड यू दैट यू कैन नाउ द डेट्स हैज बीन एक्सपेंडेड अबाउट द पेबल अमाउंट. नाउ यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ कि पहले डेट्स क्या थी, ठीक है. व्हाट वर द डेट्स प्रायर टू दिस डिसीजन, व्हाट वर द डेट्स प्रायर टू दिस डिसीजन, ठीक है. नेक्स्ट स्कीम वी हैव इज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम for road accidents, ठीक है. Now how if any of the person meets road accident, how the treatment can go cashless? Of course with the help of government only. Private entities are not going to make it cashless, of course. Their motive is to earn profit only, and the government is the one who works for the welfare of the people. The government entity is the sole entity who can make welfare decisions for the people, who can take welfare decisions for the people, who can make things cashless go in a manner. So similarly जो हमारे road accident victims हैं, ठीक है, उनके लिए पर्टिकुलर स्कीम है. तो ये पर्टिकुलर स्कीम बोलती क्या है कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ हमारे आयुष्मान भारत स्कीम की, तो विच इज़ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना स्कीम, तो उसके अंडर क्या करा जाएगा, किसी भी अगर इंडिविजुअल का रोड एक्सीडेंट होता है तो उसको सर्टन अमाउंट ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो फ्री करा जाएगा, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स ऑफ दोज हॉस्पिटल्स ओनली हु आर एक्रेडिटेड टू इट. सो उन्हीं हॉस्पिटल्स को जो कि ये सिस्टम या फिर ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है हु आर एक्रेडिटेड टू इट, उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके क्या मिलेगा, कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगा. नाउ दिस इज अ हेल्पफुल स्टेप दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्पिंग रोड इंडिविजुअल्स, हेल्पिंग दोज इंडिविजुअल्स हु मेट रोड एक्सीडेंट. तो बहुत बार ये चीज़ भी होती है कि अचानक से अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो दे डू नॉट हैव मनी टू फॉर देयर ट्रीटमेंट. सो दिस इज अ बिग स्टेप दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिमिलरली आपने गुड समारिटन्स जो हमारा इनिशिएटिव है दैट इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिमिलर ट्रीटमेंट भी आपने, सिमिलर स्टेप भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, जिसमें क्या इंश्योर करा गया था कि लोग अगर एक्सीडेंट किसी इंडिविजुअल का होता है तो लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द पुलिस क्योस. तो लोग जो है वो उस इंडिविजुअल को या फिर द पर्सन हु मेड दैट एक्सीडेंट उसको छोड़ के चले जाते हैं. सो टू रिड्यूस दैट गवर्नमेंट ने क्या करा था कि आपको 5,000 समथिंग का एक रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा इफ यू प्रोटेक्ट दैट इंडिविजुअल हु हैज मेट द रोड एक्सीडेंट. सो दैट वाज आल्सो द स्टेप. सिमिलरली दिस इज आल्सो द स्टेप. वहाँ पे क्या था, एक विन प्राइज दिया गया था. अब यहाँ पे क्या है, कैश जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो हमारा ट्रीटमेंट होगा, जितने भी पैसे लगेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है दैट इज सेट, पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज दैट इज आर नितिन गडकरी जी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कैशलेस ट्रीटमेंट इनिशिएटिव फॉर दोज पीपल्स, फॉर दोज विक्टिम्स हु हैव मेट द रोड एक्सीडेंट, ठीक है. नाउ इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ इट इज expanded to include in the regions such as your Assam,
Punjab, Haryana and Pondicherry. ठीक है, so it is expanded in these regions also. So government is trying its best to provide help to each and every individual that is living in different areas. So basically this is the reason that it is in news. ठीक है, now the framework will be revised by March 2025. ठीक है, अब हाईलाइट जो है इस स्कीम के क्या है कि जो ट्रीटमेंट है वो फ्री करवा दिया जाएगा हमारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य स्कीम है उसके अंडर. ठीक है, फिर उसके बाद कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज मिलेगा. ठीक है, दिस आई टोल्ड यू. अब इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो भी स्मूथ रहेगा. फॉर एग्जांपल वेरियस सेक्टर्स विल बी अलाइन टुगेदर. अगर पुलिस स्टेशन जो है वो उनको अलाइन कर दिया जाएगा, जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलाइन कर दिया जाएगा, सो दैट की जो कवरेज है या फिर आई वुड से कि जो हेल्प है वो एकदम स्मूथ वे में चले. ठीक है, ऐसा ना हो कि पुलिस जो है वो अलग कवरेज कर रही है विक्टिम की. ठीक है, फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलग से जाना पड़ रहा है. सो मेनी ऑफ द individuals will be aligned together. Many of the I would say institutes or I would say individuals will be aligned together so that the things can go smoothly. Okay, next compensation for families in case of fertility. तो compensation जो किसको मिलेगा, हमारी रोड विक्टिम्स होंगे उनकी फैमिलीज को compensation भी मिलेगी in case of fertility only. ठीक है, now this is a scheme that I just told you. good हमारा जो Good Samaritans है, a cash prize of 5,000 is rewarded for Good Samaritan, and this was a step that was of course there for helping those people, helping the victims who have met the road accident. Now a question for all of you here is, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari ji has introduced a comprehensive cashless treatment initiative to assist victims of road accidents. This initiative builds upon pilot project launched by the Ministry of Road Transport and Highways on March 14, 2024 in A treatment is provided at hospitals accredited under dash. Families of victims involved in a hit and run cases will receive a compensation of dash amount in the event of fatality. So you can pause the video, you can just read the paragraph, and then I'll give you some options and I'll ask you some questions, and then accordingly you have to mark what will come in A, what will come in B and what will come in C. So you can first pause the video, you can see, you can read the entire paragraph, and then I'll ask you the questions. Okay. Alright, so I assume that you have taken either screenshot or you have analyzed or read the entire paragraph. So first, A stands for what? Is it Punjab, Bangalore, Chandigarh, Delhi और चेन्नई? हमने कुछ क्या देखे थे अभी, कुछ हमने एरियाज देखे थे जिनमें इनको एक्सपैंड करा गया है. So it is what? It is your, I think it is Punjab. It is Delhi. Okay, it is Delhi. Next, B stands for what? Is it Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? Is it Employment State Insurance Scheme? Is it National Health Scheme? Is it A and C or A and B? What is the case here? So it comes under your Pradhan Mantri your Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. ठीक है, so it comes under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Next, C stands for what? How much amount? 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh or 5.5 lakh? Yes, the correct answer is your 2 lakhs. Okay. Next scheme we have is National Green Hydrogen Mission. National Green Hydrogen Mission. Now, why this particular scheme is in news? Because country's first hydrogen hub is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh under the National Green Hydrogen Mission. ठीक है, so ये जो है particularly it is in Visakhapatnam, that is for the first time. ठीक, अब इसका launch year क्या है? It is 2023. In which ministry is related to it? Ministry of New and Renewable Energy is related to it. मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर एम क्या है? तो इट एम्स टू पोजीशन इंडिया एट अ ग्लोबल लीडर in the production, utilization and export of green hydrogen in its derivatives. ठीक है, so अब अगर मैं बात करूँ green hydrogen की, so we all know that we our dependence on it is more on another countries. So the entire purpose of coming with this particular scheme or this particular mission is कि जो इंडिया में जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए. ठीक है, जो the technology should be reach out to other people
out of India and not you know reach out to India from another nation. So we are, you know, in case we are decreasing our dependence on the in other countries. Now it will achieve an annual production of 5 million metric ton. It is important to remember 5 million metric ton of green hydrogen by 2030. Year is also important. ठीक है. Next, द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, सबसे पहले जो हमारा एनर्जी का इम्पोर्ट है वो रिड्यूस होगा. जो हमारी डीकार्बनाइजेशन है, of course it will support, it will increase it. Next, it encourages this export opportunities. Of course it will, if we you know utilize this energy in India only, of course the things will get better. We can you know we will be able to export more. Aligns with the India's commitments under the Paris Agreement of climate change mitigation. ठीक है, so you can relate it with your sustainable development goals as well. Next scheme we have is Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. ठीक है, now we all know that it is related to what, gas cylinders, है ना, गैस सिलेंडर्स, या फिर यू कैन से प्रोवाइडिंग एनर्जी टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, सो दैट जो वुमेन है, जो रूरल वुमेन है, उसको चूल्हे पे या फिर वो बर्न करके जो हमारा वुड्स रहती हैं, हमारे जो आग जला के, जो बेसिकली हम चूल्हे पे आग जलाते हैं, उसको करके क्या हो, जो हमारी वुमेन है उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उसको एक ईजी एक्सेस दिया जाए ताकि खाना जो है वो ईजी से बन जाए. उसको फॉरेस्ट में जाके लकड़ी काट के फिर ला के फिर चूल्हे में यू नो आग लगा के खाना जो है वो नहीं पकाना पड़े. ऑफ कोर्स इट हैज़ यू नो लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज एज वेल, दैट गिव्स राइज टू हेल्थ इश्यूज एज वेल. सो this is to provide energy to each and every household to you know make things easier for women. So it comes under the Ministry of Petroleum and your Natural Gas. It has reported a major increase in the LPG connections in India, highlighting the impact of the PM उज्ज्वला योजना. ठीक है, वाई दिस इज इन न्यूज, बिकॉज जो इसकी यू नो एक्सपेंशन है, या फिर यू कैन से कि जो इसका एरिया है, वॉल्यूम, इट हैज बीन इंक्रीज्ड. People are taking benefit of it. People are enjoying, you know, the services that are provided by the government of India, the welfare services that are provided by the government of India. So, at a very, you know, subsidized rate, government क्या करती है, जो गैस सिलेंडर्स है वो प्रोवाइड करती है to those people who are under, you know, who comes under the category of BPL. तो उन जो इंडिविजुअल्स हैं, फिर उन हाउस होल्ड्स को ये जो अपॉर्चुनिटी है, फिर आई वुड से वेलफेयर जो इनिशिएटिव है वो प्रोवाइड करवाया जाता है. ठीक है, नाउ देयर आर सम रीसेंट की यू नो रीसेंट अपडेट्स. सो द टोटल इट हैज बीन डबल्ड. ओके, पहले कितने थे, 2014 में इट वाज 14.52 करोड़. इफ यू टॉक अबाउट 2024, इट हैज बीन रीच्ड आउट टू 32.83 करोड़. अब इट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सपैंडिंग द एक्सेस टू क्लीन कुकिंग. ठीक है, especially in the rural areas and economically weaker households. This I told you. Okay, expansion has reduced the dependence on traditional cooking like fuels, firewood, coal. This we have already discussed. Now what does government provide? Subsidized rate पे क्या करती है, support provide करती है. Basically LPG को, जो हमारा liquefied petroleum gas है, उसको affordable rate पे जो poor household है, जो economically weaker sections of society हैं, उनको gas cylinders subsidized rate पे provide करना. ठीक है, now the government continues to focus on increasing the LPG penetration, especially in the rural areas. This is the entire scheme. This is the entire news basically. If I talk about the scheme, then you can get to know, you will get to know कि it was released in May 2016. ठीक है, प्रोवाइड क्यों करा गया था? इट वाज द बेसिक एम वाज टू प्रोवाइड फ्री, मतलब सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी जो हमारा यू नो जो एलपीजी है उसको प्रोवाइड करने का. ठीक है, अब ये किसको हेल्प करेगा? फर्स्टली इट विल हेल्प यू नो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इट विल हेल्प स्पेसिफिकली वुमेन, सो दैट उनको भी क्या ना करना पड़े, फॉरेस्ट में जाके लकड़ी ना काटना पड़े, क्लीन जो फूड है उसकी अवेलेबिलिटी हो. ठीक है, नाउ अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट विद रिस्पेक्ट टू पीएम उज्ज्वला योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग you know statements are correct? It was launched in the year 2021 from Madhya Pradesh. It is the nodal ministry is the nodal is the Ministry of New and Renewable Energy. It is centrally sponsored scheme. A and B or all are incorrect. You can pause the video. You can either take a screenshot or you can just analyze. I hope you have done it already. So the correct answer we have is all are incorrect. इसमें से कोई भी correct नहीं है, because we have seen कि सबसे पहले तो sector scheme है. ठीक है, कौन सा ईयर था? 2016 था. We just discussed. So all are incorrect. Next news we have is about Agriculture Infrastructure Fund. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर न्यूज या फिर पर्टिकुलर स्कीम से आपको यहीं से पता लग जाएगा देखने से. द आइडिया इज बेसिकली कि न्यूज पढ़ के ही या फिर स्कीम पढ़ के ही एनालाइज करना है कि वो किसके रिलेटेड है. नाउ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, अब ये किसके रिलेटेड हुआ? टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर. ठीक है, टू infrastructure in agricultural sector.
अब ये क्यों करा गया है, अगर एग्रीकल्चर हमारा इंक्रीज होगा तो दिस विल डायरेक्टली इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, डायरेक्टली इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, दिस इज द बेसिक पर्पस है ना। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहे हैं तो बेसिकली वो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, प्रोडक्शन और बढ़ेगी, सो बेसिकली दिस इज द आइडिया, ओके, टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड और टू इंक्रीज द इंक्लूसिविटी, या फिर आई वुड से टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी। नाउ इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन 20 जुलाई 8 2020, किसके लिए, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फार्मर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। अब फाइनेंशियली हेल्प कैसे करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करना, ऑफ कोर्स उनको फाइनेंशियली हेल्प करके, सो मीडियम टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा फार्मर्स को। नाउ एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटल मेकिंग एसेट्स ओनली, ठीक है, उनको क्या चाहिए, एक छोटे चीज़ों पे या फिर छोटी चीज़ों पे वर्क करने के लिए भी उनको पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सीड्स खरीदने, लॉट ऑफ फार्मर्स डू नॉट हैव मनी, पेस्टिसाइड्स खरीदने, द लॉट ऑफ फार्मर्स डू नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम एनी वे। Similarly with the tractors, that is of course a major thing, that is an asset, and farmers get loan on that only, but when it comes to pesticides and when it comes to purchase of seeds, they are neglected. So to protect the interest of the farmers, this system is also included कि उनको क्या करा जाए, मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट करा जाए फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एज इन के प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा कि जब हमने क्रॉप उगाई है, सीड्स जब हमने लाए हैं, क्रॉप हमने उगाई है, जब तक वो जब तक उसको काटा ना जाए फसल को, जब तक टिल द टाइम इट इज हार्वेस्टेड, उतने टाइम को क्या बोला जाता है, प्री टाइम, ओके। नाउ पोस्ट टाइम इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल नाउ मेकिंग इट अवेलेबल टू द मार्केट एरियाज, ठीक है, उसको बेचना जाके या फिर वेयर हाउसेज में कलेक्ट करके रखना, सो दीज आर द एक्टिविटीज दैट आर देयर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, वी ऑल नो दैट व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स is perishable in nature, it will get deteriorated after a particular period of time. And of course, even for traveling, even if a crop is traveled from south to make it reach out to north, of course a system is required, a warehouse is required, that is a cold storage which is not there, and that is the reason कि हमारी बहुत सारी crops क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं। So providing it a particular infrastructure के ऊपर पैसे लगाना, cold storage को बढ़ाना, warehouses को बढ़ाना, so that the whatever is produced by the farmers can also be stored for a longer period of time, they can also sustain, and of course अगर ज़्यादा टाइम तक टिके रहेंगे तो उनका प्राइजेस भी उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। सो दैट इज द रीजन दिस पर्टिकुलर स्कीम इज देयर टू इम्प्रूव द फार्मर्स प्रोडक्टिविटी, reduce the post harvest losses, enhance the value addition in agriculture, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर न्यूज। नाउ एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन कौन सी होंगी, सो फार्मर्स आर देयर, ठीक है, योर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, दे विल आल्सो गेट बेनिफिटेड, योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल आल्सो गेट बेनिफिटेड, फिर कोऑपरेटिव्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हो गए, दे विल आल्सो गेट बेनिफिटेड, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट एजेंसीज होगी, फिर कितने टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर कवर्ड अंडर इट। सो आई टोल्ड यू कि सबसे पहले तो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स है ना, इफ अ ट्रैवल इज देयर एंड इट इज टेकिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको स्टोर करके भी तो रखना है। अगर 10 दिन ले गया, अगर 10 दिन जो है वो ट्रैवल करने को लेंगे तो ऑफकोर्स अगर टमाटर उसके अंदर पड़े होंगे तो वो खराब हो जाएंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग पैकेजिंग यूनिट्स आर शुड बी देयर, लॉगेजिंग के लिए सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए कि हम सप्लाई चेन को इंश्योर कर सके, ठीक है। कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स लाइक योर कस्टम हायरिंग सेंटर्स शुड बी देयर टू मेक थिंग्स मोर ईजियर इन अ मैनर। अगेन स्मार्ट एंड डिजिटल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स शुड बी देयर, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है, सो वी हैव a nodal ministry which is your Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. This is important to understand, to remember. Loans that are provided through banks, NBFCs, financial institutions, and जो NABARD है, it plays a key role in its implementation, ठीक है, NABARD plays a key role in its implementation, ठीक है। Next you have is Digital Agriculture Mission, Digital Agriculture Mission. अब agriculture is there, ठीक है, but they have combined it with the digitalization. It means inclusion of involvement of technology, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो इसके अंदर,
टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्वॉल्व करें, हम और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं ताकि हमारे एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सपोर्ट मिले और थिंग्स जो है वो ईजियर हो फार्मर्स के लिए भी एज वेल एज फॉर अदर आस्पेक्ट्स ऑल्सो. रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड योर गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन द सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सॉल्यूशन. दिस इज द रीजन दैट इट इज इन न्यूज़. ठीक है, ऑफकोर्स अगर डिजिटलाइजेशन आएगी, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो आएगी तो हर एक सेक्टर में इंप्रूवमेंट तो होगी, है ना. अब जो चीज़ें अगर मार्केट में जाके वो बेच रहे थे, अब कुछ अगर फार्मर्स, अगर ऑनलाइन सिस्टम ऐसा तैयार कर दिया गया है कि दे कैन सेल इट ऑनलाइन, दे कैन फाइंड आउट द मार्केट्स सिटिंग एट देयर होम ऑल्सो. सो ऑफकोर्स थिंग्स विल गेट बेटर. दे आर सेविंग देयर टाइम, दे आर सेविंग देयर एनर्जीज एज वेल. सिमिलरली अगर उनको प्रोवाइड करवा दिया जाए कुछ ऐसा सिस्टम जिससे उनको पता लग जाए कि देखो ये वाला जो वेदर है दिस इज गुड फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉप. सिमिलरली अगर कोई सिस्टम ऐसा प्रोवाइड करवा दिया जाए कि जो आपके सॉइल की हेल्थ के बारे में बता दे कि दिस योर पर्टिकुलर सॉइल विल गिव सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर क्रॉप, तो उनकी यील्ड भी अच्छी होगी. तो इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी ऑलवेज गिव्स अ गुड रिजल्ट. ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ दिस मिशन. सो इट प्रमोट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स इट improves the farmer welfare, crop productivity and your agri business efficiency as well. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड की अगर मैं बात करूँ, इट इज बिटवीन 2021 to 25 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड योर फार्मर्स वेलफेयर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन इट? एग्री स्टैक, दैट इज टू बूस्ट और प्रोवाइडिंग ईज इन द सर्विसेज. ठीक है, सो एग्री स्टैक क्या करता है? सर्विसेज को ईज प्रोवाइड करने के लिए दिस पर्टिकुलर इज द स्कीम इज देयर. AI बेस्ड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग. अब देखो पेस्टिसाइड समझ लीजिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स पहले फार्मर्स क्या करते थे कि हर एक क्रॉप के ऊपर डालते थे. नाउ दिस AI बेस्ड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग इंश्योर्स कि अगर किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर कीड़ा लगा है, ठीक है, तो आप उधर ही पेस्टिसाइड को डालिए रादर देन स्प्रिंकलिंग इट ऑन ईच एंड एवरी क्रॉप. ऑफ कोर्स दैट विल रिड्यूस द हेल्थ ऑफ द क्रॉप आल्सो, और आपकी पेस्टिसाइड भी खराब होगी, आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे. सो दिस इज हाउ इट इज हेल्पिंग फार्मर्स. AI हेल्प से क्या होगा? इट विल एनालाइज दैट विच क्रॉप is infected, which crop is infected and that too from which insect. So accordingly medicine जो है वो उतनी ही quantity की डाली जाएगी. ठीक है, similarly you have blockchain for supply chain management and you have drones and internet of things services as well. So this will also give ease to the farmers. Benefits क्या है? Better access to credit, insurance and subsidies, real time advisory services are provided, it will reduce the wastage and it will improve the market linkages. ठीक है, similarly impact क्या पड़ेगा? अब impact बहुत सारे हो सकते हैं. एग्री बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट्स आर पॉजिटिव इन नेचर. फार्मर्स की जो बिजनेस है उनको इम्पैक्ट करेगा, क्रॉप यील्ड को बढ़ाएगा. ठीक है, कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज्यादा इन्वॉल्व होगा, सर्विसेज सेक्टर को और ज्यादा हेल्प मिलेगी. सो ऑफ कोर्स यू कैन सी द फार्मर ऑफ द इनकम एंड द प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड, वैल्यू चेन्स एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. नेक्स्ट वी हैव नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स. नाउ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स क्या बोलता है कि जो हमारे एडिबल ऑयल्स की डिपेंडेंसी है ऑन अदर नेशंस दैट इज इंक्रीजिंग विद द पीरियड ऑफ टाइम. सो वी नीड टू रिड्यूस इट. ठीक है, अपनी जो प्रोडक्शन है एडिबल ऑयल्स की फिर और एडिबल सीड्स की वो अपने इंडिया में करो ताकि वी कैन रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. नाउ व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द नेशनल मिशन और योर एडिबल ऑयल सीड्स फॉर द पीरियड ऑफ 2024 to 25 to 2030 to 31. So basically there is an extension of it. Okay, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज करना हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स, रिड्यूस करना डिपेंडेंस इंपोर्ट्स के ऊपर, हमारे जो ऑयल सीड कल्टिवेशन है उसको प्रमोट करना. ठीक है, उससे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी रादर देन ग्रोइंग व्हीट एंड राइस ओनली, दे कैन स्विच टू अदर क्रॉप्स एज वेल. ठीक है, तो बाकी सारी क्रॉप्स भी ऑफ कोर्स बहुत बेनिफिट देती है. अगर हम एडिबल ऑयल्स की भी बात करें तो दैट ऑल्सो गिव्स बेनिफिट टू द फार्मर्स. सो दे इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर फार्मर ओनली कि जो पर्टिकुलर क्रॉप्स उगाई जाती, जो फेमस क्रॉप्स है व्हीट एंड राइस आर द फेमस क्रॉप्स, इससे हटके बाकी चीज़ें भी उगाई जाए ताकि फार्मर का भी बेनिफिट हो प्लस इंडिया का भी बेनिफिट हो. ठीक है, Now it gives financial support and incentives to the farmers. High yield oil seeds जो है वो बढ़ेंगे, टेक्निक्स आएंगी और ज़्यादा इंटीग्रेशन होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी, सपोर्ट करेगी हमारी पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग को. ऑफ कोर्स उनको MSP जो है वो श्योरेंस दिया जाएगा. अगर नहीं दिया जाएगा तो वाई वुड दे स्विच देमसेल्व्स टू दीज क्रॉप्स. एक्सपेंशन होगा हमारा ऑयल पाम कल्टिवेशन का अंडर योर दिस पर्टिकुलर मिशन. ठीक है, अब
Now about the need for the mission, because we have, you know, we were highly dependent upon importing these you know, oil seeds from the rest of the countries. Our dependency is near 55 to 60% and we have to reduce it, that is very for sure. उसके बाद increase करना हमारे domestic production को to enhance your self sufficiency and your food security as well. ठीक है, now a question again for all of you, that what is the primary objective of your particular scheme or mission for 2024 25 to 2030 31? First is to increase the production of sugarcane and reduce dependency on imports. Of course, sugarcane is nowhere related to it, so this is incorrect. To enhance the production of primary oilseed crops like mustard, groundnut, soybean to achieve the self-reliance. This is correct. To promote the organic farming practices nationwide. We did not talk about organic farming here. To expand the product of crude palm oil globally. This is still questionable, but it is not included here, of course. To provide assistance, financial assistance to the productivity of horticulture and crops. So which one is the correct option? Correct. So correct one is the B one. Okay. Now you have a mission, or I would say a scheme, that is known as remission of duties and tax on export products, that is your RODTEP. Okay, RODTEP scheme. अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और बेसिकली अगर आपका कुछ भी पैसा वगैरह सेटल नहीं हुआ है, तो दिस स्कीम इंश्योर्स कि वॉट एवर यू नो इज द अमाउंट पेंडिंग देयर दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड वॉट, उसमें क्या होगा, आपको आसानी मिलेगी. दिस विल इंश्योर कि उसमें क्या हो, आपको कोई भी आपके रेज्ड कंसर्न्स है, अनसर्टेनिटीज हैं, वो बैलेंस आउट हो जाएंगे. ठीक है, दैट विल बी सेटल्ड. सो एक्सपोर्टर्स हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द अनसर्टेनिटीज दैट इज रिगार्डिंग टू द you know, eligibility for duty credits under the remission of duties and taxes scheme. So crucial क्यों है ये? For you know, refunding embedded taxes and duties that are not refunded through other mechanism, helping Indian exporters stay competitive globally. So basically कोई भी you know अगर कोई भी विवाद है आपका इन चीज़ों को लेके, ट्रेड के रिलेटेड, या फिर जो you know सेटलमेंट नहीं हुई है पैसे की, so it will settle it down. About scheme, this is you know, reimburse embedded taxes and duties that is paid on exported goods, and they are, if they are not refunded under the existing schemes, तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा. ठीक है, so it will boost India's exports and make Indian goods competitive and in global markets. लॉन्च कब करा गया था इसको? 2021 में लॉन्च करा गया था. The period was, the month was January 1, replacing the MEIS, which is your merchandise exports for India scheme. ठीक है, all sectors in goods and services are included, administered by Ministry of Commerce and Industry through an IIT based automated system. This is important to learn. ठीक है. Now again a question, remission of duties and tax on exported product scheme, that is RODTEP scheme, has replaced which of the following scheme? Has it replaced your merchandise export incentive scheme, merchandise export infrastructure scheme, merchandise export from India scheme, merchandise export from integration, or merchandise export from import scheme? You can pause the video and read it and then answer it. All right, so the correct option we have is India scheme. ठीक है. Next you have is PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement, PM Drive Scheme. अब यहाँ पे क्या है? इनोवेटिव व्हीकल, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनको बूस्ट करना. ठीक है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनको यू नो इन्वॉल्व करना, ताकि हम जो हमारा कार्बन इमिशन है उसको भी रोक सके, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशंस को भी रोक सके. सो बेसिकली इंक्लाइनिंग आवरसेल्व्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, दिस इज द एंटायर न्यूज और स्कीम रिलेटेड टू इट. ठीक है, अब इसका लॉन्च डेट क्या है? इट वाज सितंबर 29 2024. इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या था? अक्टूबर 1 2024. इट विल बी एक्टिव टिल 31 of March 2026. Ministry, which ministry is involved here basically? So the Ministry of Heavy Industries is involved here. Budget क्या रहेगा? It is 10,900 crores is the budget. Objective क्या है? To promote the adoption of EV. So I just told you कि हमारे environmental you know impact, हमारे environment पे transportation का we have a high impact of course, है ना? जो चीज़ें हैं या फिर जो carbon emission है that is very high. तो स्टेप क्यों लिया गया है? स्टेप क्यों लिया गया है? बेसिकली जो हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, जब हमारे जो डोमेस्टिक यू नो जो हम गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, उसका जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस करने के लिए. सो इफ वी विल स्विच टूवर्ड्स ईवी तो इम्पैक्ट विल बी लेस. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. अब सपोर्ट करता है ये E2W, दीज आर व्हाट आर इंक्लूडेड और व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ योर EVs ओनली. ठीक है, सो इट विल इंक्लूड दीज मैनी टाइप्स हो. ठीक है, अब
you have a question here that which category of vehicles is supported under the PM E-Drive scheme for subsidies and in incentives? Is it electric bikes only? Is it electric two-wheeler, two EVs, three-wheeler and e-buses, only electric ambulances and your e-trucks, petrol and diesel vehicles with advanced fuel efficiency, or is it hybrid vehicles powered by petrol and electricity? So we read कि two wheelers भी include होंगे, three wheelers भी include होंगे and buses भी included होंगे, तो so the correct answer is B. All right. Yes. नेक्स्ट वी हैव इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है, अब सुरक्षा बीमा योजना अगेन दिस इज अ स्कीम दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस. ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो इंश्योरेंस जो है इसके ये व्हाट डज इट्स मीन और ये क्या प्रोवाइड करवाती है बेसिकली, तो हमने कहीं भी वो क्रॉप के रिलेटेड नहीं पढ़ा है. सो वी गेट टू एनालाइज कि ये दिस इज रिलेटेड टू आवर लाइव ओनली. ओके, नाउ इट वाज रिलीज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. 2015 में इसको लॉन्च करा गया था. मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. टाइप कौन सा है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है. सो बेसिकली अगर आपको एक्सीडेंट होता है, ठीक है, सो उसके रिलेटेड क्या है, इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी. अफोर्डेबल रेट पे आपको जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है प्रोवाइड करवाई जाएगी. नाउ दिस इज specifically for the poor and underprivileged people or section of the society. ठीक है, now this much information is important for all of the aspirants here. Last we have is PM Jeevan Jyoti Bima Yojana. Again this is a news related to your insurance only. Again बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है, बट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये जो हमारी सुरक्षा बीमा स्कीम है, दिस वाज रिलेटेड टू एक्सीडेंट. कि एक्सीडेंट हुआ है, इससे सुरक्षा प्रोवाइड करनी है. ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, इससे सुरक्षा प्रोवाइड करनी है. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ज्योति बीमा योजना की, सो ये क्या है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, वो क्या था, एक्सीडेंट इंश्योरेंस. सो दिस इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. नेक्स्ट जो चीज़ें हैं दैट आर सेम. 2015 में जो है वो इम्प्लीमेंट जो करा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिलेटेड टू इट, बट इट प्रोवाइड्स व्हाट, it provides life insurance coverage at an affordable cost again for the economically weaker section of society. ठीक है, for the economically weaker section of society. So that is it. These are the many newses that were there in January. Of course part 2 में हम और ज़्यादा newses देखेंगे. So the task for all of you is कि फिर से इसको जाके news को देखिए. ठीक है, एक और बार अगर आपको lecture लगाना है तो you can see. But this is what is all relevant from your examination perspective. ठीक है, so today we have analyzed many of the newses. Similarly और ज़्यादा हम न्यूज़ देखेंगे पार्ट 2 में. इस वाली न्यूज़ सेक्शन को, इस वाली वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना. एंड ऑफ कोर्स यू शुड सी स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो दैट इज रिलेटेड टू इट. पीआईबी को साथ साथ देखते रहना ताकि आपको चीज़ों का और पता लगे. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. अब आपको जो रेस्ट ऑफ द न्यूज़ है दैट यू विल फाइंड इन द पार्ट 2 सेक्शन. थैंक यू सो मच.